Good evening, everyone. Once again, welcome to Dada's Zoom session, DFR Zoom session. So as we all know that Dada has covered all 38 remedies, rescue remedy, all emotional groups, and he further decided to take some interesting topics. So continuing with our last time topic of emotional coaching in kids. So that is like we have to deal with parents and not exactly kids, because kids take the emotions from their parents, right? So last time we have covered a good simple 5-step process by John Whitman of how to emotionally start coaching your kids in the bud when they are very young. So taking it further, and yes, of course, last time we had a very good speaker, but some emergency in her house. She is not here with us. But yes, we have Dada. And Dada has some wonderful examples. So मैं पहले थोड़ा सा कवर करती हूँ so that दादा उस पे spontaneous examples आपको देंगे. कितने उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं. मैडम वो आपको ही बताना है, मैंने आपको बता दिया है. हाँ, मेरे को ठीक है दादा, मेरे को आपने बता दिया है. बस वो 2-4 जो है आपके एग्जाम्पल है ना, जो बच्चे जो आपके पास बच्चे आए ADHD वाले या तोतला के जो बच्चे बोलते हैं, तो वो वाले एग्जाम्पल्स तो आप ही दीजिएगा. मैं स्टार्ट कर देती हूँ एंड सो एंड में जैसे जैसे आपको आएगा. हाँ, वो लास्ट में. आज जो टाइम मिला तो बहुत सारा कवर करूंगा. बिल्कुल दादा, बिल्कुल. ठीक है. यस. So let me take further in the part 2. So it is like that कि sometimes we आज आपके यहाँ नेट का इश्यू है. थोड़ा सा नेट इश्यू है, but now it is okay. Okay. So let me start with this today, that sometimes we as parents, we either बोलते हैं ना कि बच्चे जब तुतला के बोलते हैं, या we as parents we smile or take it lightly जब बच्चे बड़ों को एक्सप्रेस करते हैं उन्हीं के इमोशंस में. जैसे कभी कोई फादर को देख लेते हैं अपने बॉस से बात करते हुए या मदर से बात करते हुए या वाइस वर्सा, तो जनरली जो बड़े बड़े एक्सप्रेसिव इमोशंस होते हैं ना बड़े लोगों के, गुस्से में डैम इट, गॉश इट, तो वो बच्चे जब गेस्ट के सामने रिपीट करते हैं या जब बोलते हैं तो पेरेंट्स और गेस्ट कई बार है ना मुस्कुरा देते हैं. दे फील वेरी फनी कि बच्चा ऐसा बोलता है, तो उस वक्त बच्चे को लगता है ओके दिस इज एक्सेप्टेबल. बट इमीडिएटली आफ्टर द गेस्ट आर गॉन, तो कई बार बच्चों को डांट भी पड़ जाती है, ये कौन सा तरीका है. तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो सब जने मेरी बात पे हंस रहे थे और अब मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, मुझे मम्मी पापा डांट रहे हैं, पर ऐसा तो ये खुद भी बिहेव करते हैं. सो यू आर थ्रोइंग किड्स इनटू अ कंफ्यूजन एरे. In a sense, like when you are speaking in that way, it is okay. But when kids are speaking that way, so it is absolutely not okay. So in a same manner कि वो ये सोच कि like if a person is talking to their partner or if the boss is acting in some way, so that is not acceptable. But when a kid is doing this, so it is acceptable in front of guests. But again, you are doing a different U-turn when the guests are gone. So this is throwing a kid into a confusion state. उसको ये नहीं समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. So from here, deterioration of the emotions start happening. A confused kid is born. A confusion starts building up in their nature. Likewise, कई बार कैसा होता है, many parents they dismiss their fears and upset when the kid is upset. स्पेशली ड्यूरिंग नाइट, बच्चा नींद से एकदम घबरा के उठता है, पेरेंट्स के पास आता है कि मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा सपना आया. सो कई बार पेरेंट्स बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम सो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट अ किड इज सेइंग. सो you are just eliminating their fears by not talking to them, by not letting them speak up. So in this way, when the elders they eliminate the fears without listening, so again the kid is losing confidence in themselves. वो confused तो हो ही रहा है और अपने अंदर का confidence जो उसका है वो भी lose हो रहा है, because now from here the fear is building up. और इसके बाद धीरे धीरे कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मदर्स होती हैं, तो बच्चे को फटाफट खाना खिलाना है, तो
फट से बोल देंगे तुमने अगर खाना नहीं खाया तो वो देखो नीचे पुलिस वाला बैठा है ना, वो आ जाएगा. So with these tiny examples, you are building up that fear in your child, various kind of fears, and at the same time you do not want to speak about this fear because you are not looking from the perception of a child. आपका perception different है because you are an adult, you are grown up, पर बच्चे का perception बच्चे वाला ही रहेगा. So when you do not speak to them, when you do not let them voice, you are building up fear in them, they are losing the confidence, they are becoming a confused personality. No child is born ADHD, no child is born with any disorder. But the parents' behavior in them, the parents' behavior towards them is building up all these things. So now here, as I said, the deterioration of emotions begin. Now, the taking children's emotions seriously. Actually, if you do not take their emotions very seriously, we know what they are becoming. But what it requires a lot of empathy. It requires a lot of love. It requires a lot of listening skills and seeing their emotions in their perspective. तो ये सारी चीजें बहुत सारा पेशेंट का काम करती हैं. A parent has to have patience in them to understand what a kid is saying. और जरूरी नहीं है कि आपके पास जब टाइम हो उस वक्त ही बच्चा बोले. Anything can build up from anywhere, anytime. So you got to listen to the kid anytime they want you. क्योंकि जरूरी नहीं है जो उस वक्त शेयर इमोशन स्ट्रॉन्ग है वो बाद में भी रहे. By the time किसी और ने वो चीज हैंडल कर ली होगी. So you are building up double confusion in them. I will give you one very nice example. So when you are listening to them, when you are listening from their perspective, what you are building a confident child. और वो कॉन्फिडेंट चाइल्ड कहता है थोड़ा काम होगा, वो हाइपर नहीं होगा बच्चा. वो दैट चाइल्ड विल बी काम एंड एट द सेम टाइम दैट चाइल्ड नोज हाउ टू शेयर. ये शेयरिंग हैबिट जो सिंगल चाइल्ड होता है इसमें नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आती है. जरूरी नहीं है सारे सिंगल चाइल्ड शेयरिंग नहीं, वो शेयर करना जानते हैं एंड दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स. वो कॉन्फिडेंस होगा when they will be able to speak up, so that child will be overall calm, they will be overall confident. Or confident child knows how to share their stuff, confident child knows how to share their talk, how to share their emotions. Right? This way they are easily making new friends, and they are like you can say at the same time when they are playing they are not bullying others, and at the same time they are very calm, and there is a difference. They are very energetic. There is a mild hairline difference in being energetic and in being very hyper. So when a person or when a child is calm, they can be energetic. But when they are not calm, they are hyper. So we need to understand that if your child is very energetic, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा है ना, अक्सर मैंने सुना है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि my child is very hyper. दादा कई बार सवाल करते हैं कि मैडम ये बताइए वो हाइपर है या वो उसमें बहुत सारी एनर्जी है. 110% टाइम्स जो पेरेंट होता है जो ये केस लेकर आता है वो कई बार चुप हो जाते हैं, बिकॉज हमको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एनर्जी क्या है, वाई द किड इज एनर्जेटिक एंड वाई द किड इज हाइपर. तो हमको उनको लिटरली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अब आप बताइए आपका बच्चा हाइपर है या आपका बच्चा एनर्जेटिक है. So energetic can be in a positive manner, but hyperness is definitely not in a very positive manner. So now from here we can understand how very subtly parents' behavior comes in a child. So many times I tell parents that it is very important how you behave in front of your kids. They will not listen to you after a certain point. You can't be authoritarian. They will watch you and they are watching you every moment. So your behavior pattern is going into your child. So many times I see my behavior pattern in my son, in my kid. I was little hyper in a sense. I was very impatient. That I can see in my son, that he too is impatient. Okay, fine. Likewise, I took a little bit of time and energy to understand all these factors. But this, if you can understand as a new mother, in a bud, that is very good. So as a parent, you can be there can be 3-4 types of parenting, but
वी विल डिस्कस हियर टू टाइप ऑफ मेजर पेरेंट्स. एक होते अथॉरिटेरियन पेरेंट्स. अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं, दे नेवर गिव एनी सॉर्ट ऑफ फ्रीडम टू द किड. देयर इज एब्सोल्युटली नो से ऑफ अ किड. उनके जो माँ बाप के जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे वो बच्चे को ओबीडियंटली मानना है. उनके ऊपर पूरा बच्चों का दबाव रहता है. ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? ऐसे बच्चे होंगे, दे विल बी लाइक इरिटेबल चाइल्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड चाइल्ड, कॉन्फ्लिक्टेड चाइल्ड, कंफ्यूज चाइल्ड. क्योंकि सब टाइम मम्मी पापा ही बोले जा रहे, उनका कोई परसेप्शन नहीं है सोचने का भी ना बोलने का. वो दूसरे बच्चों को देख रहे हैं तो वो कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज दे कैन नॉट डिस्कस विद द पेरेंट्स की वो बच्चा तो ऐसे करता है, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं करने के लिए. सो दिस काइंड ऑफ अ पेरेंट इज अथॉरिटेरियन, एंड डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ किड्स दे बिकम कॉन्फ्लिक्टेड, इरिटेबल, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. दे विल नॉट लिसन टू एनीवन एंड दे विल बिकम वायलेंट इन स्लोली इन नियर फ्यूचर. और एक दूसरे तरह के पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स. दे ऑल्सो हैव अ सेट ऑफ कुछ लिमिट्स होती हैं उनकी भी, बट एट द सेम टाइम दे आर ओपन टू डिस्कशन फ्रॉम द किड्स. बच्चा अगर परेशान है या बच्चा अगर कुछ बोलना चाह रहा है, सो दे विल हैव अ लिसनिंग ईयर. दे विल नॉट ऑलवेज आस्क देम टू कीप क्वाइट, राइट. ऐसा नहीं है कि आप हमेशा मेरी बात सुने. दे आर ओपनिंग टू लिसनिंग, दे आर ओपनिंग टू डिस्कशन, एंड देयर इज अ लव एंड वार्मथ. तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, सो दे आर जनरली सेल्फ रिलायंट होते हैं, वेरी फ्रेंडली होते हैं. हियर द किड इज एनर्जेटिक, क्योंकि उसको पता है कि है ना, मैं जो भी बोलूंगा मम्मी पापा के पास उसका सोल्यूशन होगा, बिकॉज दे विल लिसन टू मी एंड दे विल हैव टोटल एनर्जी टू डिस्कस एवरीथिंग विद द पेरेंट्स. क्योंकि वो डर नहीं है कि मुझे मेरी बात को काटा जाएगा. एंड दे विल बी डेफिनेटली वेरी एनर्जेटिक, friendly, and at the same time in later stage of life they will be achievement oriented, क्योंकि वो confused child नहीं है. So ये दो तरह के पेरेंट होते हैं. अब आपको ये समझना है कि आपको एक बिल्कुल ओबीडियंट, कई बार कैसा होता है ना कि गेस्ट आते हैं ना, बहुत आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ओबीडियंट है, एवरीबडी लाइक्स एन ओबीडियंट चाइल्ड, बट इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओबीडियंस कैन बी टू वेज. बच्चे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स समझिए, आपकी डिसलाइक्स, देयर हैज टू बी अ डिस्कशन. जरूरी नहीं है आपको अथॉरिटेरियन पेरेंट बनना है जो रिबेल करेगा फाइनली बच्चा. अथॉरिटेटिव बनिए, जहां अपने भी रूल सेट कीजिए और बच्चे की भी बात को मानने की कोशिश कीजिए. नाउ हियर आई विल टेल यू कि जो ये इमोशनली कोच्ड बच्चे जो होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, दे हैव अ वेगल टोन कैरेक्टरिस्टिक्स. Now this is very important, especially to all the homeopathy doctors and even the parents. They need to understand a little basic scientific thing कि ये जो vagal tone characteristics होती हैं, ये क्या होती है. ये हमारे अंदर एक vagus nerve होती है in a parasympathetic, which बोल सकते हैं कि which is responsible to many functions in parasympathetic nerve, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, जिससे कि आगे चल के जैसे जो बच्चे बनते हैं ना, हम बोलते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं बच्चे के अंदर, या बोलते हैं एंटी सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर है या शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स हैं. तो ये डिसऑर्डर, ये वेगस नर्व जो होती है, ये अगर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है बच्चे के अंदर, तो इतने सारे डिसऑर्डर्स, इवन एडीएचडी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स बच्चों में डेवलप होने लगते हैं. और अगर ये वेगस नर्व, अगर ये बोलते हैं पर्सन के अंदर, बच्चे के अंदर अगर ये स्ट्रांग है, सो द पर्सन हैव अ एबिलिटी टू फोकस, टू कॉन्सेंट्रेट, टू कनेक्ट. एक कनेक्शन होता है पेरेंट बच्चे के बीच में. बच्चा एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड होता है, उसके अंदर फोकस होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या बोला जा रहा है. तो वो जो क्या बोला जा रहा है उस पर वो फटाफट रिएक्ट भी करता है और फटाफट वो उसको कूल डाउन भी होने में आसानी देता है. तो जो बच्चा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, और बोलते हैं ना इनहिबिटिंग एक्शंस व्हेन नीडेड. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 3-4 सेट ऑफ बच्चे हैं, उनको बोला 1, 2, 3 भागिए, दैट इज अ पॉइंट यू हैव टू रीच. तो उसमें से कुछ बच्चे इतने वेगल टोन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं, हाई कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं, वो फटाफट भागेंगे और वो इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे, वहां भाग के टच करके वो वापस मेरे पास आएंगे. सो क्या है? फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिसनिंग. इवन दे नो हाउ टू लिसन बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव टॉट देम. और वो फटाफट भाग के वापस मेरे पास आएंगे.
उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भाग के तो चले जाएंगे बट वहां जाके खड़े हो जाएंगे, उन्होंने आगे नहीं सुना पूरा कि मुझे लौट के आना है। और कुछ बच्चे होंगे जो समझेंगे ही नहीं कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि वो अक्सर वो वाले बच्चे होते हैं जो या तो बहुत दबे हुए बच्चे होते हैं जिनको बोला जाता है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। सो दिस वैगस नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, और ये जो इमोशनली इंटेलिजेंट और कोच्ड बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सुपर होती है। सो दीज किड्स दे हैव एन एबिलिटी टू फोकस, टू पे अटेंशन, एंड एट द सेम टाइम वो जो भी काम करते हैं उससे रिकवर भी हो जाते हैं वापस फास्ट, एंड दे नो हाउ टू काम देमसेल्व्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। और ये बच्चे जो होते हैं दे डू नॉट फॉल, बोलते हैं ना, प्रे टू ऑल द डिसऑर्डर्स। जरूरी नहीं है इमोशंस उनके भी बिगड़ेंगे, इम्बैलेंस वो भी होगा, बट आई सेड दे नो हाउ टू रिकवर बैक बिकॉज दैट वैगस नर्व इज वेरी शार्प इन देम, दैट हैज बीन कोच्ड बाय द पेरेंट। तो एक बच्चे होता है जो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा, बस उसको वापस आना नहीं होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे अपने आप को बैलेंस करूं। और ये वाले बच्चे होते हैं दे नो हाउ टू कम बैक, राइट, बिकॉज दे आर नॉट कंफ्यूज्ड किड्स। उनको पता है कि सही क्या है, उनको पता है, दे हैव बीन कोच्ड हाउ टू कम बैक, हाउ टू बी सेल्फ रिलायंट, हाउ टू बी कनेक्टेड टू द इमोशंस एंड हाउ टू बी कनेक्टेड टू द सिचुएशन एट द सेम टाइम। नाउ एक छोटी सी चीज है, कोई मुझे ये बता सकता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एन इमोशनल इंटेलिजेंट चाइल्ड, जो कि अभी हमने पढ़ा 3 चीजें, सिर्फ 3 डायमेंशन हैं ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड के, फोकस, concentration and connectedness. So this connectedness we always say is connectedness between parents and kids. और ये जो जॉइंट होता है ना, मुझे अभी एक चीज एकदम से ध्यान है, दिस जॉइंट मीन्स कई बार आपने पेरेंट्स में स्पेशली मदर्स में देखा होगा, बोलते हैं कि घुटने में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, लोअर बैक पेन में दर्द है। तो दादा हमेशा ये बोलते हैं जिस फैमिली में जॉइंट की कमी होगी या जॉइंट में परेशानी होगी, फैमिली मेंबर्स के बीच में परेशानी होगी, वहां पे स्पेशली लेडीज को कहीं ना कहीं जॉइंट पेन होगा। तो ये परेशानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ में रहे, ये परेशानी एक एडल्ट चाइल्ड जो कि इमोशनली डिस्टर्ब है, जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जा रहा है, वो पेरेंट्स के बीच में भी होती है। तो ये चीज बच्चे के अंदर भी आ जाती है और माँ बाप के अंदर भी आती है। If there is a gap in the joint, then there is a gap or there is a pain in your joints. So there is a beautiful saying, ये चीज दादा हमेशा बोलते कि the relationship which you built with your kid in first 7 years of their life is very crucial, but the first 3 years are a nub of it. मतलब वो उसकी, बोलते ना, वो बीज बोने की सबसे एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, दैट इज अ नब ऑफ दोस 7 क्रूशियल ईयर्स। वो जो 7 साल क्रूशियल होते हैं, इसमें से पहले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे इंग्लिश में बोला जाता है नब ऑफ इट। सो इफ द फर्स्ट 3 years you have done right as a parent, you can sit back and relax, और नहीं तो you will, as a parent, you will have to face that disorder in a child for a very very long time, और वो आपके लिए एक बहुत परेशानी का मैटर बन जाता है। फिर हम बोलते हैं मेरा बच्चा ADHD है, या मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, या बहुत हाइपर है, बट ये कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि कहीं ना कहीं हमारी फॉल्ट है उस बच्चे को बड़ा करने में। हमेशा उसको हमने मना कर दिया, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, नहीं तुम्हें ये नहीं करना, मत अभी बहस मत करो, बस कह दिया ना ऐसे करना है तो ऐसे करना। दोज आर द थिंग्स दैट मेक देम इमोशनली very weak child. So without connection, of course, a child cannot survive in today's world. What in any time of the world, कभी भी बच्चा बिना कनेक्शन के कभी बड़ा नहीं हुआ। In a, बोलते ना, when a child is devoid of that adult attachment, वो कहाँ ढूंढता है वो अटैचमेंट? फिर वो अपने पीयर ग्रुप्स में, वो अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढने जाता है। वो फ्रेंड सर्कल जो होता है, फिर वो अपने मॉरल्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल, वो अपनी बातें बताएगा, वो उनके टीचर्स बन जाते हैं, वो एक दूसरे के टीचर्स बन जाते हैं, बट वो भी तो बच्चे ही हैं, उनका भी लेवल ऑफ थिंकिंग, उनका भी लेवल ऑफ सेइंग इज द सेम वे। हो सकता है वो दूसरे बच्चे भी कंफ्यूज हो। अब क्या हो रहा है, बच्चा उनकी बातें सुनता जा रहा है। नाउ पेरेंट्स एट सर्टेन एज वांट दैट दे शुड लिसन
to them. But what happens, now kid is pushing the parents away because जब उसको जरूरत थी parents के पास time नहीं था. Now he has a very good set of peers, उसके friend circle. And so when the kid is pushing away their parents, because their mind is different from the morals what the parents are teaching, which is very difficult to understand for a child. Because ये competition जो है ना वो बच्चा handle नहीं कर सकता. दो different friends कुछ और बोल रहे हैं, मम्मी पापा कुछ और बोल रहे हैं. So that kind of competition no child can bear it. So they push their parents away और वहां से चिढ़, आप मुझे कुछ मत बोलो, मुझे पता है मुझे क्या करना है. वहां से हम बोलते कि मेरा बेटा मुझे सुनता नहीं है, मेरी बेटी मुझे सुनती नहीं है, सामने जवाब देते हैं, बदतमीज हो गए हैं, वॉयलेंट हो गए हैं, गुस्सा करते हैं, कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं. बट दिस इज वॉट यू हैव सोन, सो दिस इज वॉट यू रीड, सो दिस इज अप टू यू कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं. सो योर बिहेवियर पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज वॉच योर बिहेवियर, प्लीज वॉच वॉट यू आर स्पीकिंग, हाउ you are speaking. Your child is picking up. Every second the child is picking up. Then it's never ending discussion but yes, of course, as parents, we can do this thing that we can discuss, keep on discussing with a child, give them an opportunities to speak. उनको बोलने की इजाजत दीजिए कि वो क्या चाहते हैं या उनका level of perception जो भी है उसको सुनने. So you need to have a good listening ear. आप बाद में बता सकते हैं कि ऐसा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बट शायद ये हो सकता है, ये गलत हो सकता है. So you are giving them options to choose. So let them choose, but give them the options at least. And when can you give them the options? Only when you can hear what they are saying. तो सुनना सबसे बड़ी आर्ट है, without judging. So yes, discussing like this parent topic, it is a never ending. ये कभी भी खत्म ना होने वाला टॉपिक है. बट in our next session we will understand कि what is the right manner for the parent to speak, कि भी सही तरीका क्या है. We will do that in the next session. But right now we will go to Dada because he has some wonderful things to say. In fact, इससे पहले उन्होंने वीकेंड से पहले मुझे बताया था कि इस पे ऐसे तुम्हें लिखना है, तो ऐसे तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया with his examples, but of course he is going to share few examples. Dada, to you. अरे मैडम क्या बात, कितना मजा आ रहा है, सुनते ही जा रहे थे, सुनते ही जा रहे थे. इतना टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, और अचानक से आपने ब्रेक लगा दी. तो ऐसे ब्रेक लगाना भी तो जरूरी होता है ना कभी कभी. हाँ, तो बच्चे पैदा करना वो एक अलग बात है, और मॉम पापा बनना, पेरेंट बनना वो भी अलग बात है. जब बच्चा पैदा होता है, पेरेंट बनते हैं, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारी क्या किसके पर आती है, मॉम के ऊपर. बहुत सारे दुख कौन सहन करती है, मॉम. पापा क्या करता है, जैसे बच्चे पैदा हुआ मिठाई खाता है, सबके साथ मिठाई बांटता है, पार्टी करता है, ड्रिंक करता है. और मॉम डिलीवरी के बाद में 1 महीना 1.5 महीना तक एक और बैठो, खाने में ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बट ये भी जरूरी है. तो सबसे बड़ा रोल माँ का होता है. बच्चे की सबसे बड़ी टीचर कहो तो भी मॉम माँ, और सबसे पहली टीचर कहो तो भी मॉम माँ. सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है माँ. अब जो बच्चे को जो भी कुछ होता है ना, जैसा आपने बताया, उसके जिम्मेदार कौन होते हैं, हम पेरेंट. हमारे पास टाइम नहीं है. जो पहले का जमाना था वो तो अब रहा नहीं, सब भागम भाग है, किसी के पास में टाइम नहीं है. टाइम है तो टीवी के सामने टाइम है, बच्चे के लिए टाइम नहीं है. जैसे पहले ही बताया था कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो डर अपने साथ लेके पैदा होता है, डर से ही गुजरता है. जैसे दुनिया में पहला कदम रखा, आंख तो अभी खुलती नहीं है, फिर भी उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें, न्यू मास्क पहने हुए 3-4 डॉक्टर, 3-4 नर्सेज. क्या होगा, डरेगा ना, डरेगा वो. तो डर के साथ पैदा होता है.
अब एक दिन से लेके आगे तक जितना अच्छा रिजल्ट होम्योपैथी और बेच फ्लावर देती है ना, बिना साइड इफेक्ट के, वो एलोपैथी नहीं देती। होम्योपैथी और बेच फ्लावर माइंड एंड बॉडी को जिस तरह से डेवलप, कुदरती राह से जिस तरह से डेवलप करती है ना, वो एलोपैथी नहीं करती। यहाँ हमारी बेच फ्लावर और होम्योपैथी का हाथ एलोपैथी के ऊपर रहता है। अब बच्चे को सबसे ज्यादा समझता कौन है? मॉम। कब रोता है, क्यों रोता है, वो सबसे अच्छी तरह मॉम को पता है कि बच्चे को कुछ पेन है, भूखा है, गैस ट्रबल है, क्या है, वो मॉम आराम से समझ लेती है। और कुछ आपने बता दिया, अच्छे से बता दिया, तो मैं सीधा MM मतलब कि ट्रीट कैसे करना है वहां पे ही जाता हूं। अगर ऐसा लगा तो हम नेक्स्ट टाइम यही चालू रखेंगे, वो देखेंगे बाद में। बट हम लोग कहते हैं ना कि मेरा बच्चा बड़ा शांत है, कभी तूफान नहीं करता, बीमारी में भी जो दे दो वो खा लेता है, गुपचुप पड़ा रहता है, एकदम शांत बच्चा है। नहीं, बच्चे हमेशा तूफानी ही रहते हैं। यहाँ आपको ये समझना है कि आपका बच्चा एग्रीमोनी है, उसको पेन भी होता है, उसको दर्द भी होता है, वो कुछ बताता नहीं, अपने आप सहन करता है। ये सहनशील बच्चा है, ये एग्रीमोनी बच्चा है। अब आगे देखे तो कोई कोई माँ बाप बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा नींद में चिखता है, नींद में से उठ जाता है, नाइट वॉकिंग करता है, डरता रहता है, अंधेरे से डरता है, बिना लाइट के सो नहीं सकता, या तो सोता है तो मेरा हाथ पकड़ के सोता है। यहाँ आप सोच सकते हो निमूलस और अचपेन। तो यहाँ बच्चे के डर को आपको पहचानना है कि बच्चे के माइंड में कौन सा डर है, वो डर को जानता है या यूं ही डरता रहता है। दूसरा है, जो होम्योपैथ है वो आराम से समझ जाएंगे कि ये सिलीसिया का बच्चा है। सिलीसिया का बच्चा कैसा होता है? ऐसा ही होता है, वो भी डरपोक होता है, वो भी डरता रहता है, जिसको भी बार बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, कफ, कोल्ड, टॉन्सिल, बॉइल्स, ETC होता रहता है। वो बच्चा भी शर्मीले नेचर का होता है, वो भी डरता है, छोटी सी शार्प चीजों से भी डरता है। या सिलीसिया भी वर्क करे, कि माई डालती है डर, आधा टाइम तो माई डालती है। यहाँ सिलीसिया भी वर्क करेगी, निमूलस भी वर्क करेगी और अस्पेन भी वर्क करेगी। अब सिलीसिया की बात निकली है तो ये समझो कि ये बच्चा जो है ना, वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ज्यादातर उसका झुकाव क्रिकेट की ओर रहेगा। ये बच्चा एक आर्टिस्ट भी बन सकता है। तारे जमी पे देखी थी ना आपने? हाँ, उसका जो हीरो था वो छोटा बच्चा, वो सिलीसिया का बच्चा था। बट ये बच्चा डरता क्यों है? एक बात मैंने देखी थी, शायद मैं गलत हो सकता हूं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नाभि से ऊपर कभी भी कपड़े मत पहना। वो मतलब जो हम पैंट पहनाते हैं ना, बेली से ऊपर तक की, बेल्ट लगा दिया बेली के ऊपर, कहाँ प्रेशर आ गया? बेली के ऊपर क्या होता है? लीवर, ETC। तो यहाँ हमने कस के प्रेशर दे दिया तो क्या होता है? ये बच्चा लाइफ टाइम डरपोक रहेगा, मत पहनाओ। हाँ, बेली से थोड़ा नीचे की ओर पहनाओ कपड़े। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, आप भी एक ट्राई कर लेना।
याद है दादा? अच्छा। जितने भी मेरा नाम जोकर है या जो भी है, जिसमें आप नोट कीजिए, बहुत बारीकी सी चीज है कि जो जो आदमी पैंट बहुत ऊपर पहनता है उसको जोकर की तरह नहीं लिया जाता, उसको कौन हाँ। सी लेता है? क्योंकि हाँ, तो राज कपूर के जितने भी पिक्चर है ना, वो देखो तो वो एकदम से ऊपर तक का पैंट ही पहनते वो हैं। कॉन्फिडेंस। हाँ, अब आप अपने आप को ही लीजिए, जो ट्रेडिशनल पहनते हैं या तो हम जो जीन्स पहनते हैं वो कहाँ पहनते हैं? नाभि से नीचे। पुराना पोशाक क्या था? नाभि से नीचे का पोशाक और ऊपर का पोशाक, बीच के स्टमक का भाग खुला। अब सोचो क्यों इतना भाग खुला रखते थे? कुछ तो रीजन है ना। ठीक है, वो बात फिर आगे सोचेंगे। अब ये बच्चा है मैं ही सच्चा बाकी सब गलत, ये भी सिलीसिया का बच्चा है, मैं ही सच्चा जीटी बच्चा है, ये सिलीसिया है। जो होम्योपैथ है वो आराम से समझ जाएंगे कि सिलिका का बच्चा कैसा होता है। अब आगे एक बच्चा होता है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेमोनियम बच्चा। जो होम्योपैथ है वो आराम से समझ जाएंगे स्ट्रामोनियम बच्चा कैसा होता है। जो भी डरपोक है, अंधेरे से डरता है, रूम में अकेले रहने से डरता है, अनजान जगह पे जाने से डरता है, बट उसका एक इमोशंस बोलो या तो सिम्टम्स बोलो कि उसको अपने साथ एक चीज खास चाहिए, कि जैसे कि उसके हाथ में आप हमेशा एक कपड़ा देखोगे, वो हमेशा एक कपड़ा लिए बैठेगा, या तो कपड़ा यूं हाथ, हाँ कपड़ा यूं हाथ में होगा और थम सकिंग करता रहेगा, ये स्ट्रामोनियम है। हाँ, ये स्ट्रामोनियम है। या उसके हाथ में कोई टॉय होगा, उसको कुछ न कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? उसको किसी